Hello everyone. So I welcome you all for this session on nitrogen containing compound. Student, this is a crash course for JEE, NEET and CET. So student will not go much in detail. Rather, what we will be doing will be just having a quick revision on this chapter. So student, what I want is, so those who want to revise this chapter, first of all, when you are seeing this video, I would like to tell you कि आप NCERT को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि हमारा जो पूरा फोकस होने वाला है वो NCERT बेस्ड होने वाला है, isn't it? Now students, I would like to tell you कि ये कोर्स कैसे चलने वाला है. सबसे पहले स्टूडेंट्स, I will be covering this complete chapter within 2 or 3 lectures, isn't it? And हमारा पूरा फोकस जो होगा वो NCERT होगा, that is NEET या JEE मेंस का सिलेबस होगा. And definitely उसके बाद I will be taking a lecture in which I will be covering all those concepts which is related to advanced syllabus, isn't it? और एडवांस लेवल प्रॉब्लम हम वहां देखेंगे. तो पहले फ्यू लेक्चर्स इट विल बी डायरेक्टली इट इज टारगेटिंग नीट एंड जेई एंड सीईटी. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर आप इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड चैप्टर में वी हैव टू स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट amines. Second thing that we have to study about anilines. Third that we have to study about diazonium salts and their reaction. तो ये तो स्टूडेंट the thing that is given in NCERT. अभी इसके अलावा there are few things that we have to study, that is NO2. Nitro compounds, even it contain nitrogen. Then we have to study about cyanides and isocyanates. So this is not given in NCERT in this chapter, rather it is distributed. ये अलग अलग जगह पे आपको मिलेगा, isn't it? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन 3 बातों पे फोकस करेंगे. Okay, now so let's start with amines. सो अमाइंस क्या है? सो स्टूडेंट, अमाइंस जो हैं, अमाइंस आर कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. व्हाट? इट इज कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया. It is considered as derivative of ammonia. And what is ammonia? I think every one of you know what is ammonia. Ammonia is NH3. So student, अगर आप NH3 से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके एक अल्कील या फिर एक अरील ग्रुप मतलब एरोमेटिक रिंग, isn't it? अगर आप उसे ऐड करेंगे तो जो आपको मिलेगा स्टूडेंट, वो प्रोडक्ट जो कहलाता है अमाइंस. सो व्हाट? अमोनिया से व्हाट यू आर गेटिंग? अमोनिया से यू आर गेटिंग अमाइंस बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन, एंड इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एडिंग अल्कील और एरिल ग्रुप. इज इट क्लियर? ओके, नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू सी इज structure of amine. Structure of amine. So students, you know what is structure of ammonia? Structure of ammonia is pyramidal, isn't it? Pyramidal shape का होता है, isn't it? क्योंकि इसके पास क्या है स्टूडेंट? वी हैव अ लोन पेयर एंड वी हैव 3 बॉन्ड पेयर, सो इट्स शेप विल बी पिरामिडल. नाउ अज्यूम करो कि मैं इस हाइड्रोजन को हटा के किसी अल्कील ग्रुप को, एक अल्कील या एक से ज्यादा अल्कील ग्रुप को
लेके आता हूं हाइड्रोजन के प्लेस पे. सो व्हाट विल बी द चेंज इन द शेप? शेप में कोई चेंज आएगा? नो. इट विल बी अगेन व्हाट? इट विल बी अगेन पिरामिडल. Is it clear? So shape of amines are pyramidal, and what will be the angle between the bond? Definitely it will be decided by the alkyl group. Generally it is less than 109 degree 28 minute. तो अगर R के जगह if you have CH3 group, अगर तीनों जगह पे CH3 group है, you will find its bond angle is around 108 degree. Is it clear? तो structure of amine is pyramidal, and what is amine? Amine is derivative of ammonia. Now we will see about classification of amines. So student, classification of amine. Classification of amines. Now student, amines are basically classified under three categories. Amines are classified under three categories: primary, secondary and tertiary amines. What are primary amines? So primary amines are those compounds in which one of the hydrogen of ammonia is replaced by any alkyl or aryl group. So अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटा के अगर आपने अल्कील या अरील ग्रुप ऐड कर दिया है तो दैट विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी अमाइन. Isn't it? तो स्टूडेंट कैसे जज करना है? नाइट्रोजन के साथ कितने अल्कील या अरील ग्रुप जुड़े हुए डायरेक्टली, दैट विल डिसाइड डिग्री ऑफ अमाइन. सो प्राइमरी अमाइन इज व्हाट? RNH2. उसी के जगह पे अगर स्टूडेंट आपने एक हाइड्रोजन के जगह दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है तो दिस विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी अमाइन. दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी. Is it clear? What is tertiary amine? Tertiary amines are those amines in which नाइट्रोजन के स्टूडेंट्स अमोनिया के नाइट्रोजन से कनेक्टेड तीनों हाइड्रोजन हटा के अल्कील या अरील ग्रुप ऐड कर दिया गया है. Is it clear? Is it clear? अब एक और क्लासिफिकेशन आप कह सकते हैं स्टूडेंट, एलिफेटिक अमाइंस एंड एरोमेटिक अमाइंस. अभी एलिफेटिक अमाइंस में स्टूडेंट्स क्या होगा? अल्कील ग्रुप विल बी अटैच्ड. एंड एरोमेटिक में क्या होगा स्टूडेंट? एटलीस्ट वन एरोमेटिक रिंग विल बी अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम. एटलीस्ट वन एरोमेटिक रिंग, minimum one aromatic ring will be present, then it will be called as aromatic amine. Is it clear? Clear hai? And one more classification is कि student, if we have two different alkyl group and if both R and R dash are same, then it is called as simple amines. And if R is not equal to R dash, then it is called as mixed amines. Clear? सिंपल अमाइंस में सारे के सारे अल्कील ग्रुप एक जैसे होंगे, लेकिन मिक्स्ड में क्या होगा? यू विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कील ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन एटम. इज इट क्लियर? पक्का? चलिए, नाउ स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू ओवर हियर, जो काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. इंपॉर्टेंट ये बात है कि इफ यू हैव प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस, आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस हैं. क्लियर है? अभी सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है, दे हैव व्हाट? दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो अगर दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देन डेफिनेटली दे विल बी व्हाट? दे विल बी आइसोमर्स. डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में क्या रिलेशन होगा? दे विल बी आइसोमर्स. बट विच टाइप ऑफ आइसोमर्स दे विल बी? दे विल बी कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स. इट मीन्स primary, secondary and tertiary groups are different functional group. It is very important to note. So students, यहां का जो functional group है और इस जगह पे जो functional group है,
they are different functional group. Remember it. They are treated as a different functional group. So they will be called as functional isomers. Now student, we have one question based on this. So just try to do it. Question is, student, we have a compound. We have compound amines of formula C4H11N. We have this formula representing different amines. Different amines. So you have to draw different possible structures and their isomeric relationship. You have to tell about their isomeric relationship. So student, what is formula C4H11N? So सबसे पहले what you have to do, जब कभी आपको आइसोमर्स बनाने हैं किसी भी कंपाउंड के लिए, तो सबसे पहले आप क्या करो स्टूडेंट, आप DU निकालो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो. और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस नंबर ऑफ हेलोजन एटम माइनस n/2 और ऑक्सीजन को इग्नोर करते हैं स्टूडेंट. तो जनरली आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये देखेंगे. तो अगर इस फॉर्मूला को मैं यूज करूं तो यहां से मुझे DU मिलेगा. सो DU विल बी व्हाट? DU will be in this case, number of carbon atom is 4, 4 plus 1 is 5, 5 minus number of hydrogen atom is 11, 11 minus number of nitrogen atom is 1, so 1/2, so DU is 0. So DU 0 means what student? No unsaturation, no unsaturation. So all will be simple amines. Abhi let's try to draw the possible structure, all possible structure for C4H11N. ओके, सो टू डू दैट हम क्या करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले विल ट्राई टू हैव ऑल प्राइमरी अमाइंस, ऑल प्राइमरी अमाइंस. तो स्टूडेंट सबसे पहले प्राइमरी अमाइंस ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं? हम लोग 4 1 2 3 4 कार्बन है हमारे पास, चारों को स्ट्रेट में, स्ट्रेट लाइन पे रखते हैं, है ना. सो लेंथ ऑफ द रिंग इज 4 एंड लेट्स ड्रॉ इट एज NH2. Isn't it? So this is primary amine. Now student, can we change the position of NH2? Yes. तो हम लोग position of NH2 को change करते हैं. Now can you tell me कि is it primary amine? So definitely it is primary amine. Why this is primary amine? Because only one alkyl group is attached to NH2. Student ध्यान में रखिए, अगर इसी के जगह पे OH होता तो मैं उसे क्या कहता? सेकेंडरी अल्कोहल कहता. Isn't it? बट अमाइंस के केस में वो केस नहीं, ये चीजें वैलिड नहीं है. जनरली हम लोग डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं हैलाइड्स या अल्कोहल के केस में? वो किस तरह के कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है. बट अमाइंस के केस में क्या होता है? अमाइंस के केस में नाइट्रोजन किसके साथ कितने अल्किल ग्रुप जुड़े हैं, दैट इज गोइंग टू डिसाइड डिग्री ऑफ अमाइन. सो इट इज डेफिनेटली अ प्राइमरी अमाइन. ओके, अब इसके और पोजीशंस को आप नहीं बदल सकते. isn't it? नाउ और प्राइमरी अमाइंस कौन से पॉसिबल है स्टूडेंट्स? तो चेन लेंथ को हम लोग क्या करते हैं? 3 का करते हैं, NH2. ओके, सो दिस इज NH2. सो अगर 3 का चेन लेंथ है स्टूडेंट्स, सो इट कैन बी ओवर हियर. एक अल्कील ग्रुप कैन बी एट दिस प्लेस, 1 2 3. सिमिलरली student, alkyl group can be at this place and NH2 over here. This is again primary, this is again primary. Is it clear? और कुछ possible है students? You cannot have this at this place, length 4 का हो जाएगा. Any other possibility? Any other possibility? Okay, now students, what we can do, अगर आप ये देखेंगे, अगर आप इसे देखेंगे ध्यान से तो आप समझो दिस इज सेम एज दिस. आप देख लो, चेन लेंथ इज 1 2 3 एंड 4. तो ये गलत हो गया. Isn't it? समझ रहे हो आप? तो दे आर नॉट डिफरेंट आइसोमर्स, रेदर दे आर
same molecule, so this will not be there. But ये allowed है क्या? This is allowed? Yes. 1 2 3, this is possible. Is it clear? Okay, now one more thing is, तो ये ध्यान में रखना है स्टूडेंट, how to draw different isomers. Is it clear? तो this is what? This is the next isomer. So this is 1 2 3. Okay, now can we have NH2? Oh, in this we have 5 carbon atom. So 5 carbon atom is not possible, 4 carbon atom. So can we have this nitrogen connected to NH2 and this? Still we have 4 carbon atom, and again this is primary amine. Is it clear? So students, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने प्राइमरी अमाइन वो सारे ड्रॉ किए जिसमें लेंथ ऑफ कार्बन एटम अलग हो. तो ये 4 वाला पॉसिबल हो गया. देन वी हैव 3 का चेन लेंथ के साथ देखा, देन 2 के चेन लेंथ के साथ हमने देखा. इज इट क्लियर? क्लियर है? ओके, सो स्टूडेंट, यहां पर चेन लेंथ इज 2 और 3. कैन यू टेल मी? अगेन इट विल बी 1 2 एंड 3. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसको मैंने क्या किया है, इनफैक्ट मैंने इसको NH2 को इस जगह पे रखा है, तो चेन लेंथ इज 3 अगेन. ओके, नाउ स्टूडेंट, यहां पर पोजीशन को हम और कुछ बदल सकते हैं क्या? इस जगह पे पोजीशन कैन बी एट दिस प्लेस और दिस प्लेस और दिस प्लेस, सब पोजीशन सेम आने वाले हैं. और यहां पर अगर आप रखेंगे यू विल गेट दिस. ओके, एनीथिंग एल्स? और कोई प्राइमरी अमाइन यू कैन ड्रॉ? सो इट्स नॉट पॉसिबल. ऑल प्राइमरी अमाइंस we have drawn over here. Now secondary amines कौन से होंगे students? Secondary amines कौन से होंगे? So secondary amines में this is 1, this is 2, this is 3. So at least we need 2 alkyl group. So this is one of the secondary amine. Similarly students, we can have, this is one of the secondary amine. चेन लेंथ चेंज किया हमने. सिमिलरली वी कैन हैव दिस इज वन ऑफ द सेकेंडरी अमाइन. सो दीज आर द सेकेंडरी अमाइन. अच्छा, और कोई पॉसिबिलिटी स्टूडेंट सेकेंडरी अमाइन की? और कुछ पॉसिबिलिटी? एनीथिंग एल्स यू कैन ड्रॉ अदर देन दिस? सो दिस इज सेकेंडरी अमाइन, दिस इज सेकेंडरी अमाइन, दिस इज सेकेंडरी अमाइन. Isn't it? अभी अगर टर्शरी अमाइंस अगर देखेंगे स्टूडेंट्स, टर्शरी अमाइंस क्या हो सकते हैं? टर्शरी अमाइंस, द ओनली पॉसिबल टर्शरी अमाइन इज दिस. नाउ आपसे क्या कहा गया था? सबसे पहले आपको बोला गया था ड्रॉ ऑल पॉसिबल अमाइंस. सो वी हैव ड्रॉन दिस ऑल पॉसिबल प्राइमरी अमाइंस. प्राइमरी अमाइंस कैसे किया स्टूडेंट? सबसे पहले हमने चेन लेंथ को फिक्स रखा है, उसके बाद उसके पोजीशन को बदला है. Isn't it? फिर सेकेंडरी अमाइंस हमने ड्रॉ किया, फिर टर्शरी अमाइंस हमने ड्रॉ किया. नाउ कैन यू टेल मी, इफ सपोज इफ आई एम सेइंग दिस एज, अगर स्टूडेंट मैंने इसको A, इसको B, इसको C, इसको D, E, F, G एंड H, अगर ये मैंने नेम्स दिए हैं, so can you tell me what is relation between A and B? A और B एक दूसरे से किस तरह का रिलेशन रखेंगे स्टूडेंट्स? They are position isomers, isn't it? Because position of NH3 is changing. Okay, A and C, can you tell me what is the relation? They are chain isomers because the chain length is changed, है ना? तो ये आइसोमेरिज्म में हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, और वहां पर हम जब रिवीजन लेंगे तो उस पर थोड़ा और डिस्कशन करेंगे. बट रिमेंबर इट, प्राइमरी अमाइंस, सारे प्राइमरी अमाइंस एक दूसरे के क्या होंगे? चेन आइसोमर्स होंगे या पोजीशन आइसोमर्स होंगे. क्लियर है? सेकेंडरी अमाइंस उसी तरह एक दूसरे के क्या होंगे स्टूडेंट्स? दे विल बी ईदर चेन, पोजीशन, और दे कैन बी मेटामर्स. इजंट इट? टर्शरी अमाइंस एक ही है. अच्छा, प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन एक दूसरे से क्या रिलेशन रखेंगे? दे विल बी
फंक्शनल आइसोमर्स, वो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। सिमिलरली प्राइमरी और टर्शरी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। क्लियर है? सो स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। यहां पर आपको किसी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इज इट क्लियर? जहां पर आपको एक सिंपल सा स्ट्रक्चर दिया जाएगा। एनीवे दिस इज अ लिटिल बिग क्वेश्चन, तो इतना डेप्थ, इतना डिटेल में क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग, बट डेफिनेटली यू कैन, आप अज्यूम कर सकते हैं कि एक कोई छोटा, इससे छोटा मॉलिक्यूल देके आपसे बोला जाए कि ड्रॉ करो और उनके बीच का रिलेशन फाइंड करो। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजमाइंस। Now, the third thing is nomenclature. Nomenclature of amines. So, student, nomenclature of amine की अगर आप बात करेंगे तो nomenclature में, so student, common name जो होता है, common name of amines को हम लोग generally they were called as alkyl amine, है ना? और आईपीएससी नेम में हम इसे कैसे नाम देते हैं स्टूडेंट्स? आईपीएससी नेम इज अल्केनामाइन। अल्केनामाइन वेर ये अल्क वर्ड जो बताता है वो क्या बताता है? अल्क वर्ड बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द अल्कील ग्रुप, इजंट इट? अभी स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट इज कि कुछ ऐसे कॉमन नेम है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि अज्यूम करो, I have given you this compound NH2, और अगर मैं बोलूं इसका कॉमन नेम बताइए, तो कॉमन नेम ऑफ दिस विल बी 1 2 3 4, दिस विल बी ब्यूटिल अमाइन। और इसका आईपीएससी नेम क्या होगा स्टूडेंट? इट विल बी ब्यूटेन अमाइन। ब्यूटिल अमाइन, एंड ब्यूटिल अमाइन इज व्हाट? कॉमन नेम, वेयर एज ब्यूटेनामाइन इज आईपीएससी नेम। इज इट क्लियर? अभी एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहां ध्यान में रखनी है, अज्यूम करो कि हमारे पास दिस इज द मॉलिक्यूल और इसका नॉमेनक्लेचर हमें पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो लॉन्गेस्ट चेन होगा दैट विल बी योर प्रिंसिपल चेन, सो इट विल बी 1 2 3, तो ये आपका रूट वर्ड जनरेट करेगा, isn't it? और ये दोनों क्या हो गए? सब्स्टिट्यूएंट हो गए। तो आपके पास इथिल एज अ सब्स्टिट्यूएंट है और आपके पास मिथिल एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन इनका पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या है? इट इज नॉट कनेक्टेड टू चेन एंड डायरेक्टली, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू नाइट्रोजन एटम। ऐसे केस में स्टूडेंट्स हम इनको नाम कैसे देते हैं? N dash name of substituent, so it is ethyl dash N methyl propane amine. So N ethyl N methyl propanamine is the name of this compound. So remember it, जब कभी आपके सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन पे जुड़े होंगे तो वैसे केस में नंबर के जगह हम नाइट्रोजन एटम को इंडिकेट करते हैं, यह बताने के लिए कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट किस जगह पे जुड़ा हुआ है। इज इट क्लियर? सो दिस इज वेरी वेरी बेसिक आइडिया ऑफ नोमेनक्लेचर। नाउ स्टूडेंट्स, कुछ कॉमन नेम कंपाउंड के, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के कॉमन नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको जनरली एग्जामिनेशन में दिखेंगे। तो उसमें सबसे पहला स्टूडेंट, जो सबसे पहला नाम है वो है बेंजीन के साथ, अगर आपने बेंजीन के साथ एनिलीन लगा दिया है ना, बेंजीनामाइन, कॉमन नेम इज बेंजीनामाइन, आईपीएससी नेम इज बेंजीनामाइन, तो इसका कॉमन नेम इज एनिलीन। एंड स्टूडेंट्स, आप एग्जाम में देखेंगे कि ये एनिलीन नाम ही आपको पूछा जाएगा, बेंजीनामाइन कहीं आपको एग्जामिनेशन में नहीं दिखेगा। सो रिमेंबर इट, एनिलीन का नाम आपको पता होना चाहिए कि एनिलीन किसे कहते हैं। उसी तरह एक और इंपॉर्टेंट नेम है स्टूडेंट्स जो एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जा चुका है। जब कभी एनिलीन के साथ CH3 जुड़ जाए तो उसे हम लोग टॉलिडीन के नाम से जानते हैं। अब ये ऑर्थोटॉलिडीन कहलाएगा बिकॉज दिस CH3 इज अटैच टू सेकेंड कार्बन। इफ अगर ये यहां होता तो ये मेटा कहलाता और अगर इस जगह पे होता तो पैरा कहलाता, बट एनिलीन के साथ CH3 इज कॉल्ड एज टॉलिडीन
ये याद रख लीजिए, ये आपको एग्जामिनेशन में ऑलरेडी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो दिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड इवन दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अभी स्टूडेंट इसके बाद और कुछ ऐसे नेम्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उसमें वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है इज दिस, एंड दिस इज पायरिडीन। इसे स्टूडेंट्स हम लोग जनरली बेस की तरह बहुत सारे रिएक्शंस में यूज करते हैं। पायरिडीन इज अ वेरी गुड बेस, है ना। ये किसी भी एनिलीन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होता है, तो इसे हम लोग बेसिकली वी यूज एज अ बेस इन आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इजंट इट स्टूडेंट। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट नेम जो एरोमेटिक कंपाउंड में है, दिस। अभी ये सारे नेम्स स्टूडेंट आपको नाम पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में डायरेक्टली इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेम ऑफ दिस इज पाइरोल। सो पायरिडीन, पाइरोल बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। एग्जैक्टली एक बार एग्जामिनेशन में ऐसा पूछा गया था कि कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ पायरिडीन, पाइरोल एंड पिप्रिडीन। तो अगर स्टूडेंट आपको उसका स्ट्रक्चर नहीं पता है, देन हाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट, इजंट इट। तो ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। Now let's see what is the structure of piperidine. So this is piperidine. तो ये कुछ कॉमन ऐसे नेम हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो जनरली कुछ इसमें से नेम एनसीईआरटी में दिए गए हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं बट एनसीईआरटी में वो नहीं दिए गए हैं। मैंने वो सारे नाम आपके लिए लिस्ट कर दिया है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो चलिए स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा है? हमने अभी तक देखा अमाइन क्या है, अमाइन का स्ट्रक्चर क्या है, अमाइन की क्लासिफिकेशन क्या है और अमाइन का नोमेनक्लेचर क्या है, isn't it? Now we will go for the preparation of amines. Students, preparation of amines में there are many methods, but सबसे पहले हम लोग will be focusing on those things that is given in NCERT. So topic is preparation of amine. Preparation of amines. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दैट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से आप एनिलीन बना सकते हैं। एंड जैसे लाइक टेक एन एग्जाम्पल, हमने यहां नाइट्रोबेंजीन अगर लिया है स्टूडेंट, और नाइट्रोबेंजीन का अगर मुझे रिडक्शन करवाना है, तो रिडक्शन करना मतलब क्या है? रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इजंट इट? तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा, द कंपाउंड व्हाट वी विल गेट इज एनिलीन। NO2 ग्रुप के जगह NH2 ग्रुप आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये रिडक्शन आप किन रिएजेंट के थ्रू कर सकते हैं? तो सबसे पहला रिएजेंट है H2PD। देन आप एसिडिक मेटल विथ एसिड के साथ रिड्यूस कर सकते हैं, SnHCl, FeHCl, isn't it? आप इनके साथ रिड्यूस कर सकते हैं स्टूडेंट। अब इस पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि FeHCl के साथ रिडक्शन इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड मेथड ऑफ रिडक्शन, बिकॉज दिस इज अ वेरी चीप मेथड। तो इंडस्ट्री में ये मेथड हम लोग यूज करते हैं, चीप मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब व्हाई दिस इज चीप मेथड? सो स्टूडेंट हम लोग Fe में आयरन स्क्रैप यूज करते हैं एंड वी यूज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl। अब देखिए Fe plus HCl will give you FeCl2 plus H2। अब ये हाइड्रोजन will be used for reduction, एंड जो स्टूडेंट FeCl2 मिला है, अगर आप उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इट विल गिव यू बैक HCl। तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl आपने शुरुआत में जो लिया है दैट विल बी अगेन एंड अगेन रीजनरेटेड। तो आपको यहां पर ज्यादा एसिड की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आयरन स्क्रैप, थोड़ा सा HCl और वाटर ऐड कर करके आप ये पूरा रिडक्शन करवा सकते हैं। सो देयरफॉर एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी
स्टूडेंट वहां पर ऑप्शंस दिए गए थे और बोला गया था नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में रिड्यूस करने का अच्छा तरीका क्या है। अब स्टूडेंट्स सभी रिड्यूस तो करते हैं, लेकिन अच्छा मींस व्हाट? अच्छा जनरली मींस इट शुड बी चीप, इट शुड बी इजीली अवेलेबल। सो FeHCl is considered to be a very good reducing agent for nitrobenzene. Is it clear? तो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन, अभी स्टूडेंट्स एक बात ध्यान में रखिए, एग्जामिनेशन में नाइट्रोबेंजीन का जो रिडक्शन है उसे काफी डिटेल में पूछा जाता है। तो दिस वी हैव सीन इट इन एसिडिक मीडियम। अभी नाउ स्टूडेंट नाइट्रोबेंजीन का जो रिडक्शन है, रिमेंबर इट, नाइट्रोबेंजीन का जो रिडक्शन है एसिडिक मीडियम में कुछ और तरीके से होता है, बेसिक मीडियम में कुछ और तरीके से होता है, न्यूट्रल में कुछ और तरीके से होता है। सो डेफिनेटली आई विल बी टेकिंग दैट इन एडवांस के जो उस टॉपिक पे मैं उसको कवर करने वाला हूं, बट फॉर टाइम बिंग आई एम नॉट कवरिंग दैट। मैं केवल वो बता रहा हूं कि एसिडिक मीडियम में नाइट्रोबेंजीन को आप रिड्यूस करेंगे तो आपको एनिलीन मिलेगा, बिकॉज दिस ओनली दिस मच इज गिवन इन एनसीईआरटी। बट डेफिनेटली नाइट्रोबेंजीन को रिडक्शन करने से हमेशा एनिलीन मिलता है, आई एम नॉट सेइंग दैट। ये एसिडिक मीडियम में है और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है एडवांस के लिए कि नाइट्रोबेंजीन का एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में आप किस तरह से रिड्यूस करने वाले हैं। इज इट क्लियर? ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज aminolysis of alkyl halide. Aminolysis of alkyl halide. What is aminolysis? What is aminolysis? So lysis means to break, isn't it student? तो अमोनिया से अगर किसी बॉन्ड को अगर ब्रेक कर रहे तो दैट विल बी कॉल्ड एज एमिनोलिसिस। सो अज्यूम करो कि मैंने अमोनिया लिया है एंड आई हैव रिएक्टेड इट विथ RX। सो व्हाट विल बी द रिएक्शन? तो स्टूडेंट अल्कील हैलाइड में हमने पढ़ा है कि कार्बन और हेलोजन बॉन्ड थोड़ा पोलराइज होता है। सो कार्बन विल हैव अ प्लस चार्ज एंड हेलोजन विल हैव अ माइनस चार्ज। अब ये कार्बन के पास प्लस चार्ज है, सो अमोनिया विल अटैक ऑन दिस अल्कील ग्रुप एंड व्हाट इट विल गिव? इट विल गिव यू RNH2 plus HX. So that this will give you amine, isn't it? तो स्टूडेंट्स जब कभी आप अमोनिया को ट्रीट करेंगे RX के साथ, what you will get? You will get amine. Now a very important thing कि स्टूडेंट ये कौन सा रिएक्शन है, ये किस तरह का रिएक्शन है, what is the mechanism of this reaction, which type of this reaction? तो you can see स्टूडेंट X को who is replacing? NH2 group is replacing. So it is substitution. Which type of nucleophilic substitution? Nucleophilic SN reaction हो रहा है and it is type of SN2 reaction. अभी स्टूडेंट SN2 रिएक्शन होने के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि दिस अल्कील हैलाइड, अभी ये याद रखिए कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर आपको क्वेश्चन फ्रेम होता है कि ये अल्कील हैलाइड कौन से टाइप के हो सकते हैं। तो स्टूडेंट SN2 के लिए यू नो कि आपका जो सबस्ट्रेट है इट शुड नॉट बी मच हिंडर्ड, क्योंकि अमोनिया, अगर स्टूडेंट अमोनिया किसी कार्बन पे अटैक करने वाला है जिसके पास हेलोजन जुड़े हुए हैं, तो उस केस में दिस कार्बन एटम मस्ट बी फ्री सो दैट अमोनिया कैन अटैक एंड डिस्प्लेस हेलोजन एटम, isn't it? तो यहां पर R शुड बी प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कील हैलाइड। टर्शरी अल्कील हैलाइड के लिए स्टूडेंट कैसा हो जाएगा? इट विल बी डिफिकल्ट टू गिव SN2 रिएक्शन। ऑलरेडी रिएक्शन मैकेनिज्म पे इस पे हमने डिस्कशन किया हुआ है, बट रिमेंबर इट कि अमोनिया एंड RX का जो रिएक्शन होने वाला है दैट विल बी SN2 रिएक्शन एंड इन द केस ऑफ SN2 रिएक्शन दिस शुड बी अल्कील, दिस अल्कील हैलाइड शुड बी ईदर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कील हैलाइड। इज इट क्लियर? क्लियर है स्टूडेंट्स? डेफिनेटली इस जगह पे वन थिंग, अगर आपने एरोमेटिक लिया है स्टूडेंट NH3 और आपने यहां पर क्लोरोबेंजीन लिया है, सो व्हाट डू यू थिंक ये रिएक्शन होगा क्या?
यहां पर देयर विल बी नो रिएक्शन. व्हाई? बिकॉज इस केस में आपने स्टूडेंट्स जो लिया है क्लोरीन, वो कैसा है? डबल बॉन्ड के साथ बेंजीन रिंग से. दे हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इजंट इट? सो अमोनिया विल नॉट बी एबल टू डिस्प्लेस. सो रिमेंबर इट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्किल हैलाइड ही एमोनोलिसिस दे सकता है. इज इट क्लियर? अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो एमोनोलिसिस से जुड़ी हुई है, दैट वी हैव टू डिस्कस, कि दिस इज नॉट अ वेरी गुड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस. नाउ व्हाई दिस इज नॉट वेरी गुड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, इस बात को समझने का ट्राई करते हैं. तो स्टूडेंट, वी नो what we have used. We have taken NH3 and we have taken RX. तो स्टूडेंट, इनके रिएक्शन से आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, हमें RNH2 मिलेगा जो प्राइमरी अमाइन होगा, isn't it? तो स्टूडेंट्स, थोड़े टाइम के बाद आपके रिएक्शन मिक्सचर मतलब स्टूडेंट्स, जब कभी आप रिएक्शन करवाते हैं, यू टेक इट इन अ कंटेनर, isn't it? तो कंटेनर में यू हैव स्टार्टेड विथ NH3 and you have taken RX. But after some time, a compound is formed which is called as RNH2. अभी स्टूडेंट समझिए, आगे के जो रिएक्शंस होंगे वो किन के बीच होगा? क्या अभी भी अमोनिया RX को अटैक करता रहेगा, या ये जो प्राइमरी अमाइन फॉर्म हुआ है वो RX को अटैक करेगा? तो डेफिनेटली ये डिपेंड करेगा कि बेसिसिटी या फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी किस तरह से चेंज हो रही है. अभी स्टूडेंट, प्राइमरी अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया, देयरफॉर अमोनिया ना डिस्प्लेस करके RX के केस में, RX के साथ अमोनिया रिएक्ट ना करके प्राइमरी अमाइंस रिएक्शन स्टार्ट करेगा स्टूडेंट. और ऐसे केस में आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट R2NH. मतलब स्टूडेंट, प्राइमरी अमाइंस आपको क्या देगा? RX को डिस्प्लेस करके सेकेंडरी अमाइन जनरेट करेगा. और ये सेकेंडरी अमाइन स्टूडेंट प्राइमरी अमाइन से भी ज्यादा बेसिक है. तो आगे के रिएक्शन में RX को कौन डिस्प्लेस करेगा? RX को सेकेंडरी अमाइन डिस्प्लेस करेगा. तो आप देख लो, अमोनिया जो आपने स्टार्ट में लिया था रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट की तरह ना रह के वो पीछे बैठा हुआ है, और रिएक्टेंट आपका हर टाइम पे बदल रहा है, जिसके कारण प्रोडक्ट भी बदल रहे हैं. एंड फाइनली यू विल गेट टर्शरी अमाइन. अब ये स्टूडेंट, ये टर्शरी अमाइंस विल अगेन रिएक्ट विथ RX टू गिव क्वाटिनरी अमोनियम सॉल्ट. तो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था अमाइन बनाना और हमें चाहिए था प्राइमरी अमाइन, बट इन प्रोसेस व्हाट वी हैव हमें क्या मिल गया? वी गॉट प्राइमरी अमाइन, वी गॉट सेकेंडरी अमाइन, वी गॉट टर्शरी अमाइन, एंड फाइनली वी गॉट क्वाटिनरी अमोनियम सॉल्ट. क्वाटिनरी अमोनियम सॉल्ट. तो स्टूडेंट, वी हैव, हमने एक प्रोडक्ट हमें चाहिए था और हमें यहां मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल गया, isn't it? So do you think this is a good method of preparation? So definitely students, यहां पर अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है जिसको सेपरेट करना डिफिकल्ट है. Therefore this is not considered to be a very good method of preparation of amine. Is it clear? So why this is not considered to be a very good method? Because we get mixture of compound. Is it clear? One important thing student, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम केवल प्राइमरी अमाइन ऑब्टेन कर सके एमेनोलिसिस के थ्रू? तो देयर इज अ वे आउट, आप उसको अचीव कर सकते हैं स्टूडेंट. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, इन दैट केस यू हैव टू यूज एक्सेस ऑफ NH3. तो जब आप स्टूडेंट एक्सेस ऑफ NH3 यूज करेंगे, तो एवरी टाइम जो भी रिएक्शन होगा वो किसके कारण होगा? जो एक्सेस में रिएजेंट है उसके कारण होगा, isn't it? एवरी टाइम RX पे कौन अटैक करेगा? अमोनिया अटैक करेगा, क्योंकि आपका प्राइमरी अमाइन ज्यादा बेसिक है बट उसकी क्वांटिटी बहुत कम है. तो वो रिएक्ट करने से पहले जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो रिएक्ट कर जाएगा. रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, isn't it? तो अगर इफ यू वांट टू स्टॉप इट एट प्राइमरी लेवल, व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू टेक वन ऑफ द रिएक्टेंट इन एक्सेस. इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो ये जो डिसएडवांटेज है कि जनरली प्राइमरी अमाइन आपको नहीं मिलता है, मिक्सचर मिलता है, लेकिन अगर आपने अमोनिया एक्सेस में लिया है तो
you can have just primary amine as a major product. Is it clear? Okay. Now students, one very important thing that you have to note, क्योंकि स्टूडेंट वी आर टेकिंग डिफरेंट आर एक्स, इजंट इट? तो ये आर एक्स कैन बी डिफरेंट हेलाइड्स. इट कैन बी अल्कील आयोडाइड, इट कैन बी अल्कील ब्रोमाइड, इट कैन बी अल्कील क्लोराइड और अल्कील फ्लोराइड. सो स्टूडेंट, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? सो ये इसका जवाब अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड विच वन इज आरडीएस. तो स्टूडेंट आरडीएस क्या है? SN2 के केस में इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, इजंट इट? तो ये जब अटैक कर रहा है तो अटैक करते समय ये दिस स्टेप इज आरडीएस. तो इसका जो लिविंग एबिलिटी है, एलजी ग्रुप लिविंग ग्रुप है, लिविंग एबिलिटी. और स्टूडेंट इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोफ्यूगैसिटी. न्यूक्लियोफिगैसिटी. तो जिसकी न्यूक्लियोफिगैसिटी ज्यादा रहेगी वो आसानी से बाहर निकलेगा और रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा. तो आयोडीन हमें पता है, आयोडीन बहुत आसानी से निकल सकता है. तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी टुवर्ड एमेनोलिसिस. अगर एमेनोलिसिस की बात करें स्टूडेंट्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? RI ग्रेटर देन RBR ग्रेटर देन RCl ग्रेटर देन RF. इज इट क्लियर? चलिए. सो दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन. नाउ वी विल गो फॉर द थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन. सो द थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन इज रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स. From reduction of nitriles. Reduction of nitriles. अब student, nitriles is what? Nitriles are cyano group, isn't it? तो साइनाइड के रिडक्शन से, अब स्टूडेंट साइनाइड का अगर रिडक्शन करना है, सो स्टिल यू कैन हैव डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट. इसमें यू कैन यूज H2 निकल, यू कैन यूज सोडियम एमलगम इथेनॉल, यू कैन यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. सो स्टूडेंट, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? तो जब कभी आपको साइनाइड का रिडक्शन करना है तो स्टूडेंट इट विल गिव यू RCH2NH2, isn't it? RCH2NH2. क्लियर है? A very important reaction. This is very important reaction. क्यों स्टूडेंट? This is basically, this reaction is used for the ascent of series. ascent of series के लिए इसे यूज करते हैं. ascent of series. अब ascent of series means increasing number of carbon atom. Increasing number of कार्बन एटम. तो कभी भी स्टूडेंट्स अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करने हैं तो बेसिकली हम लोग साइनाइड को लेते हैं. जैसे अज्यूम कीजिए आपके पास RX है और स्टूडेंट आप इसके नंबर को यू वांट टू इंक्रीज अ नंबर ऑफ कार्बन एटम बाय 1 यूनिट. सो व्हाट कैन बी डन? क्या कर सकते हो आप? तो सबसे पहले स्टूडेंट आप इसको एल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्ट करवा दीजिए. सो एल्कोहलिक KCN के साथ आप रिएक्ट करवा देंगे तो क्या होगा? साइनाइड विल अटैक एंड डिस्प्लेस X. तो आपको क्या मिल जाएगा? RCN. तो स्टूडेंट आपको साइनाइड मिल गया. अब आप इसका रिडक्शन कर दीजिए. जब आप इसका रिडक्शन करेंगे तो आपको मिल जाएगा RCH2NH2. अब स्टूडेंट NH2 को रिप्लेस करके आप किसी भी ग्रुप को ऐड कर सकते हैं, isn't it? तो ascent ऑफ सीरीज के लिए दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसे याद रखिए. रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिकॉज रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल से आपको क्या मिलता है? नाइट्राइल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू एनी कंपाउंड. और साइनाइड या नाइट्राइल आप इंट्रोड्यूस कीजिए और फिर रिडक्शन कर दीजिए तो उससे क्या होगा? आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. इज इट क्लियर? Okay, now a very important method. So this is third method, that is reduction of nitrile. Now we are going for the fourth method,
Fourth method is reduction of amide. Fourth is reduction of amides. Students, amides are RC double bond O NH2. Now remember it, amide cannot be reduced by any mild reducing agent. You require a very strong reducing agent like lithium aluminium hydride. अब स्टूडेंट जब कभी रिड्यूस करना है, कीप दिस इन माइंड, जब कभी आपको रिड्यूस करना है तो ये जब रिड्यूस होता है, सो व्हाट यू विल गेट इज, आप जब इसका रिडक्शन करवाएंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आप जब रिडक्शन करवाएंगे स्टूडेंट्स, सो व्हाट यू विल गेट, रिडक्शन करवा रहे हैं स्टूडेंट्स, आप रिड्यूस करवा रहे हैं, तो जब आप रिड्यूस कराएंगे और फिर इसका यू हैव टू गो फॉर हाइड्रोलिसिस H3O+, आपको एक बार हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, सो व्हाट यू विल गेट इज, यू विल गेट RCH2NH2. क्लियर? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. सो अमाइड का रिडक्शन विल गिव यू अगेन प्राइमरी अमाइन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. इज इट क्लियर? तो ये ध्यान में रखिए स्टूडेंट, यहां हम गलतियां करते हैं अमाइड के रिडक्शन में. तो बेसिकली ठीक है, दिस इज द रिएक्शन. तो यहां ऑक्सीजन हट रहा है, हाइड्रोजन इज गेटिंग एडेड, तो रिडक्शन हो रहा है, isn't it? Now fifth reaction, very important reaction, is Gabriel-Thalamide synthesis. Next reaction is Gabriel-Thalamide synthesis. ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. अब थैलामाइड थैलिक एसिड से एसिड का अमाइड जब बनता है तो दैट इज कॉल्ड थैलामाइड. तो स्टूडेंट, व्हाट इज थैलिक एसिड? दिस इज थैलिक एसिड. अगर ये थैलिक एसिड है तो आप जब इसे NH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, व्हाट यू विल गेट इज, यू विल गेट अमाइड. You will get amide of this compound, and the amide, this is amide. This is amide of thalic acid, therefore this is called as thalamide. This is called as thalamide. अभी स्टूडेंट थैलामाइड को फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिएक्ट विथ अ बेस. सो बेस, ये बेस क्या करेगा स्टूडेंट? ये एसिडिक हाइड्रोजन, जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसे बाहर निकाल देगा इन द फॉर्म ऑफ H+, और नाइट्रोजन पे ये 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे. सो व्हाट यू विल गेट इज, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड ON, C डबल बॉन्ड ON माइनस एंड K प्लस. क्लियर है? नाउ स्टूडेंट, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिएक्टिंग इट विथ एनी RX. अभी अगेन नाउ स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर भी क्वेश्चन फ्रेम होता है एग्जामिनेशन पे और वो काफी इंपॉर्टेंट है. अब क्या होगा स्टूडेंट, ये नाइट्रोजन विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड इट विल डिस्प्लेस दिस X. अब ये जब डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट्स, अगेन इन दिस केस दिस R should be either primary or secondary halide. It cannot be 3-degree halide or aromatic halide. Otherwise reaction will not be possible. Clear है स्टूडेंट? ये काफी स्ट्रांग है, तो इट विल गो फॉर SN2. स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, एंड व्हाट इट विल गिव यू, दिस कंपाउंड, isn't it? ये आपको मिल जाएगा स्टूडेंट.
अभी यहां से व्हाट वी विल डू ईदर एसिडिक हाइड्रोलिसिस और वी कैन डू बेसिक हाइड्रोलिसिस। आप हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए, हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए। तो चलिए हम लोग एक बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, OH H2O। तो स्टूडेंट बेसिक हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड, रिमेंबर इट, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ऑफ एनी कंपाउंड वी विल बी सीइंग इट इन डिटेल। मैं डिटेल में आपको हाइड्रोलिसिस की बात करूंगा। तो जब कभी आप हाइड्रोलिसिस करते हैं स्टूडेंट, सो व्हाट यू विल गेट एसिड। तो ये अमाइड का हाइड्रोलिसिस विल गिव यू एसिड। मैं एक लेक्चर बनाने वाला हूं ऑलरेडी, जिसमें हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे ऑल हाइड्रोलिसिस इन वन शॉट, इजंट इट। तो यहां पर हाइड्रोलिसिस होने से क्या होगा स्टूडेंट, समझिए, दिस OH माइनस विल अटैक एट डेल प्लस, इजंट इट। कार्बोनिल कंपाउंड के डेल प्लस पे अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा सो व्हाट इट विल गिव यू, C डबल बॉन्ड O। अब स्टूडेंट C डबल बॉन्ड O, तो यहां माइनस आ जाएगा, this will be OH N R C double bond O and this. Now student, this carbon oxygen will form double bond and it will displace this bond, isn't it? ये bond को बाहर निकाल देगा because nitrogen can bear negative charge on it. तो क्या होगा, C double bond OOH, C double bond O N minus and R. Now students, this reaction is taking place in acidic medium or in a basic medium. तो आप ये समझिए कि यहां पर ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन नहीं रह सकता, rather it will be minus and it will obtain a hydrogen from the medium, water molecule जो है उनसे वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा। नाउ स्टूडेंट, once again this OH minus will attack on this carbonyl carbon and finally what you will get is you will get salt of phthalic acid plus you will get RNH2. So students, in this case अगेन आप ये ध्यान में रखिए, थैलिक गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। अब स्टूडेंट्स इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ध्यान रखिए। आपको बोलेगा गैब्रियल थैलामाइड से कौन से कंपाउंड प्रिपेयर किए जा सकते या नहीं किए जा सकते, उसमें आपको ऑप्शन दिया रहेगा। कुछ एरोमेटिक अमाइंस रहेंगे, कुछ प्राइमरी रहेंगे, कुछ सेकेंडरी रहेंगे एंड टर्शरी रहेंगे। आपको याद रखना है कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस ओनली। आप यहां सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज आप सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस अगर आप प्रिपेयर करने जाएंगे स्टूडेंट, तो इस जगह पे पहले से ही आपके पास R होना चाहिए, और अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो आप एरोमेटिक अमाइंस नहीं बना सकते हैं, आप यहां पर स्टूडेंट केवल और केवल प्राइमरी अमाइंस जनरेट कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मैं थ्योरी ले रहा हूं, विद इन 2 लेक्चर आई विल कंप्लीट थ्योरी एंड उसके बाद आई विल बी हैविंग 2 to 3 सेशंस इन विच आई विल बी टेकिंग गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन, सो दैट दोस टॉपिक्स विल बी, ये मैं कॉमन एनसीईआरटी ले रहा हूं बिकॉज एनसीईआरटी इज कॉमन फॉर almost all examination, but when we will be discussing about the questions, तो स्पेसिफिक उसमें मैं जेई के लिए अलग क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा, नीट के लिए अलग से क्लासेस रहेंगे एंड एडवांस लेवल पे हम अलग से बात करेंगे, isn't it? ठीक है, तो राइट नाउ आई एम नॉट टेकिंग क्वेश्चन, लेकिन जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें डिटेल इन सब कंसेप्ट का यूज आने वाला है, तो ध्यान से एक बार रिवाइज कर लीजिए। ओके, नाउ एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखिए, आई थिंक इट इज क्लियर। एक इंपॉर्टेंट बात, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है स्टूडेंट कि sometime you will see स्टूडेंट यहां पर किसी भी अच्छे बेस को आप यूज कर सकते हैं, तो sometime you will see
NH2 NH2 दिस इज यूज्ड। अगर ये यूज किया है तो व्हाट विल बी द चेंज? तो स्टूडेंट ये अटैक करेगा, isn't it? और जब ये अटैक करेगा, ध्यान से समझिए इस बात को, ये अटैक करेगा तो यहां बन जाएगा C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस NH2 लोन पेयर एंड C डबल बॉन्ड O NR। और स्टूडेंट यहां माइनस चार्ज है, सो दिस हाइड्रोजन विल गो अवे फ्रॉम दिस सिस्टम एंड वन हाइड्रोजन विल बी एडेड टू दिस सिस्टम। अभी स्टूडेंट अगेन दिस विल अटैक टू दिस कार्बन और ये बाहर निकलेगा, और जब ये अटैक करेगा तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, रिमेंबर इट, C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O NH। so this will be the byproduct that will be you will be getting, isn't it? तो salt of थैलिक एसिड ना मिलके आपको ये अमाइड मिलेगा। Is it clear? तो NH2 NH2 is used in some cases, so you have to remember that. Is it clear? ठीक है स्टूडेंट, so this is Gabriel Thalamide synthesis. So Gabriel Thalamide में जो ध्यान में रखने वाली बात आपको ये है कि this is used for the preparation of primary amines. Is it clear? Okay, now student we will be seeing the last method of preparation that is given in NCERT. So the last method that is given in NCERT is Hofmann bromamide degradation reaction. Hofmann bromamide डिग्रेडेशन रिएक्शन। रिमेंबर इट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आप इसे कैसे देखेंगे? R C डबल बॉन्ड O NH2, आपने अमाइड लिया है एंड बेसिकली स्टूडेंट्स हम लोग यहां पर X2 या फिर यहां ब्रोमीन कैन बी यूज्ड, ब्रोमामाइड मींस ब्रोमीन, X2 विथ NaOH और KOH लेते हैं स्टूडेंट। क्लियर है? अभी एक बात याद रखिए, आपको स्टूडेंट यहां पर Br2 प्लस KOH या NaOH, Cl2 या I2 भी दिख सकता है स्टूडेंट। इसके जगह पे ना आपको ऐसा भी दिख सकता है, अभी दिस कैन बी लाइक you can see it as KOBr. So this is the same thing, isn't it? Same thing. अब ये what it will give, ये देखिए इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट। बट सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें करना क्या है। आपको C डबल बॉन्ड O को रिप्लेस करना है और आपको फाइनल जो प्रोडक्ट बनाना है वो बनाना है RNH2। So you will get primary amine, isn't it? You will get primary amine. अभी स्टूडेंट इसका मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, एक बार एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH विल बी रिक्वायर्ड। तो आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ऑलरेडी यहां पर 4 मोल्स लिखा हुआ है। कुछ नहीं तो एटलीस्ट ये बात याद रखिए, मैकेनिज्म आपको याद रहे ना रहे, आपको याद रखना चाहिए हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में वी रिक्वायर्ड 4 मोल ऑफ NaOH, है ना। अब रिएक्शन कैसे होता है इस चीज को थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं स्टूडेंट। मैकेनिज्म, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन? तो स्टूडेंट सबसे पहले RC डबल बॉन्ड O NH2 को व्हेनेवर यू ट्रीट विथ अ बेस, तो ये क्या करता है स्टूडेंट, ये एसिडिक नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो है दैट इज एसिडिक इन नेचर, तो वो उसे बाहर निकालता है और ये फॉर्म करता है RC डबल बॉन्ड O NH एंड माइनस। नाउ दिस react with Br2 to give RC double bond O NHBr. This is the first step that take place. अभी इसके बाद फिर से स्टूडेंट इट हैव अ एसिडिक हाइड्रोजन,
So OH minus again displays this hydrogen to give RC double bond O N lone pair and Br और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, isn't it? अब स्टूडेंट नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है और इन दिस केस ब्रोमीन इज अटैच टू नाइट्रोजन, तो क्या होगा, ब्रोमीन विल मूव आउट एज Br माइनस और ये जो जनरेट करेगा वो जनरेट करेगा RC डबल बॉन्ड O N, दो लोन पेयर और एक एम्प्टी ऑर्बिटल, दिस इज नाइट्रीन। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज नाइट्रीन। ये क्या फॉर्म होता है मैकेनिज्म में, दिस इज द रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन। अभी स्टूडेंट्स जब ये नाइट्रीन फॉर्म हो रहा है, रिमेंबर इट, जब कभी आपको नाइट्रीन फॉर्म होगा, रिमेंबर इट, ये एक तरह के रीअरेंजमेंट के लिए जाता है जिसको हम लोग उल्फ रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं, उल्फ रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। सो स्टूडेंट व्हाट इज दिस उल्फ रीअरेंजमेंट? उल्फ रीअरेंजमेंट में क्या होता है समझिए, दिस R ब्रेक्स डाउन एज माइनस और ये जाके इस नाइट्रोजन पे अटैक करता है, तो यहां प्लस आया है स्टूडेंट और नाइट्रोजन हैव अ लोन पेयर, सो इट गिव्स इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बन एटम एंड व्हाट यू विल गेट इज यू विल गेट RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, isn't it? So this is called as alkyl isocyanate। तो स्टूडेंट बहुत बार एग्जामिनेशन में आपको हॉफमैन रिएक्शन में अमाइड से स्टार्ट ना करके अल्कील आइसोसाइनाइड से स्टार्ट कर सकता है, तो कीप दिस इन माइंड कि अल्कील आइसोसाइनाइड का रिएक्शन कैसे होता है। क्लियर है? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में जब आप अमाइड को आप NaOH KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो मिलता है वो नाइट्रीन, एंड नाइट्रीन रीअरेंज इटसेल्फ टू अल्कील आइसोसाइनाइड। इज इट क्लियर? अभी स्टूडेंट अल्कील आइसोसाइनाइड के रिएक्शन कैसे होते हैं हम उस चीज को देखने का ट्राई करते हैं। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स आपको अल्कील आइसोसाइनाइड मिल गया है, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब ये बेसिक मीडियम में क्या होगा स्टूडेंट, दिस हैव डेल माइनस, दिस हैव डेल प्लस, OH माइनस विल अटैक ऑन दिस कार्बन एटम टू गिव R N डबल बॉन्ड C O माइनस एंड OH, isn't it? सबसे पहले ये होगा। नाउ स्टूडेंट ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है एंड दिस हैव डबल बॉन्ड, तो यहां एक रेजोनेंस होगा एंड दैट रेजोनेंस विल ब्रिंग N C डबल बॉन्ड O OH विद अ माइनस चार्ज। इज इट क्लियर? अब स्टूडेंट क्योंकि दिस इज इन बेसिक मीडियम, दिस हाइड्रोजन विल नॉट बी प्रेजेंट इन दिस केस, isn't it? तो उसके लिए क्या होगा, दिस हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड एंड दिस नाइट्रोजन विल गेन हाइड्रोजन फ्रॉम, आपको हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल यूज करना पड़ेगा। सो दिस विल गिव यू RNH C डबल बॉन्ड O एंड O माइनस। इज इट क्लियर? अब स्टूडेंट यू हीट इट, जब आप इसको हीट करेंगे तो CO2 गैस बाहर निकलेगा एंड गिव यू RNH माइनस, दिस विल गिव यू माइनस प्लस CO2 गैस। अब जब इसका वाटर एसिडिक मीडियम में it will gain water to gain hydrogen to give RNH2. So student again this is a method of preparation of what? RNH2 primary amine. तो आप देख सकते हैं final thing is primary amine, but how it is obtained? When amide is reacted with NaOH and X2, at that time first of all you get nitrene, नाइट्रीन का उल्फ रीअरेंजमेंट होल के अल्कील आइसोसाइनाइड मिलता है और अल्कील आइसोसाइनाइड स्टूडेंट OH माइनस के साथ रिएक्ट करके फाइनली व्हाट इट विल गिव यू प्राइमरी अमाइन। नाउ कैन यू काउंट नंबर ऑफ OH माइनस दैट इज यूज्ड? तो स्टूडेंट पहले स्टेज पे 1 OH माइनस इज यूज्ड ओवर हियर, सेकंड यहां पर और एक OH माइनस यूज हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है। थर्ड, दिस इज द थर्ड OH माइनस एंड स्टूडेंट यहां पर एक हाइड्रोजन था, तो ये हाइड्रोजन को आप जब रिप्लेस कर रहे हैं तो अगेन अनदर OH माइनस इज यूज्ड, तो यहां पर हाउ मेनी OH माइनस इज यूज्ड?
4 OH minus is used, है ना. So student, this is all that is given in NCERT as far as प्रिपरेशन ऑफ अमाइन इज कंसर्न. तो स्टूडेंट आज हमने किया अमाइन का इंट्रोडक्शन, अमाइन का स्ट्रक्चर, अमाइन का क्लासिफिकेशन, अमाइंस के नॉमेनक्लेचर एंड प्रिपरेशन ऑफ अमाइन. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस एंड एनिलीन्स की बात करेंगे. और थर्ड लेक्चर में विल बी डिस्कसिंग अबाउट डाइजोनियम सॉल्ट. सो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच. कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटेड. देखिए स्टूडेंट, आपके लिए बहुत अच्छा मौका मिला है आपको. आप 2 साल जब पढ़ाई कर रहे थे तो आपको ऐसा लगता था, अरे कब समय मिले, कब छुट्टी मिले कि हम ज्यादा से ज्यादा पढ़े. अब आपके पास ज्यादा से ज्यादा समय है तो आप सोच रहे, अरे एग्जाम क्यों नहीं हो रहा, ये लॉकडाउन कब खत्म होगा, isn't it? तो स्टूडेंट, ये काम होता है माइंड का. माइंड आपको हमेशा चीट करता रहेगा. माइंड बोलेगा अगर ये हो जाता तो अच्छा होता, ये हो जाता तो अच्छा होता. बट स्टूडेंट, जो माइंड का सुनता है, जो अपने दिमाग का सुनता है और रोता बैठता है, उसके जीवन में कुछ नहीं होता है. स्टूडेंट, सक्सेसफुल वही है जो हर सिचुएशन को अपने अनुसार यूज कर सके. अगर ये लॉकडाउन का पीरियड है, ये डिफिकल्ट सिचुएशन आया है और आपके लिए पढ़ने के लिए, स्टूडेंट्स, ये जो लॉकडाउन का सिचुएशन है स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत ही अच्छा पीरियड है. आपको कहीं नहीं जाना है, आपको कुछ नहीं करना है, दिन भर आपको पढ़ाई करना है और आपके पास एम्पल ऑफ टाइम आपको मिल गया है. तो ये समय है स्टूडेंट जहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं. एंड आई गारंटी यू, आप जिस तरह से मेहनत करते जा रहे हो, आप जिस तरह से पढ़ाई करते जा रहे हो, डेफिनेटली यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट, यू विल गेट वेरी गुड कॉलेज, यू विल गेट वेरी गुड रैंक. ओके, सो कीप स्टडिंग, कीप आस्किंग डाउट, कीप योर हार्डवर्क. यही चीज आपको एक्सेल करवाएगा और ये इससे आप definitely you will get success, isn't it? Thank you very much.